Good morning, student. In a previous class, we have discussed about the Arrhenius theory and Ostwald dilution law. Okay, and today we will discuss about the limitation of the Arrhenius theory. Okay, what are the limitation of Arrhenius theory? Why fail the Arrhenius theory of the ionization of the electrolyte? Okay, so first limitation is according to the Arrhenius. According to Arrhenius, electrolyte undergo dissociation or ionization. Okay, only ionization only when electrolyte dissolve in water. Okay, dissolve in water. According to the Arrhenius theory, electrolytes undergo ionization. कब होगा undergo ionization? When dissolve in water. Dissolve. Ionization के लिए क्या करना पड़ेगा? Dissolve in water. Okay. But when dissolve in water, however, when X-ray diffraction study किया गया, तब देखा कि have shown that many substance like NaCl, KCl, okay, etc. Okay, so exist as a ion even in the solid state. Okay, यानी इनको NaCl और KCl को डिजोल्व करने की जरूरत नहीं है वाटर में आयोनाइजेशन के लिए, वो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में ही आयोनाइज्ड फॉर्म में है. ये एक्सरे डिफ्रैक्शन से स्टडी किया गया. इवन इन अ सॉलिड स्टेट एंड फार्मूला NaCl, सो Na plus and Cl minus, K plus and Cl minus. So here fail the Arrhenius theory. He cannot explain for the strong electrolyte. Okay. Then second limitation. What is the second limitation? Okay. According to Arrhenius theory, what is the second limitation? Second limitation is he suggests that the electrolyte conduct the electricity only when dissolve in a water. जो water में dissolve किया जाएगा तभी electrolyte क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ओके, ऐसा उसका बोलना है. ओके, बट देर आर मेनी सब्सटेंस, ऐसे बहुत सब्सटेंसेस है विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन फॉर्म. ओके, मोल्टन फॉर्म यानी लिक्विफाइड, व्हेन हीटेड देन कन्वर्टेड इन द लिक्विफाइड. ओके, लिक्विड स्टेट में. ओके, लिक्विफाइड स्टेट में. ओके, तो लिक्विफाइड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? मेनी सब्सटेंस कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी, है ना. उनको जरूरत नहीं है वाटर में डिसॉल्व करने की. क्या नहीं है? जरूरत नहीं है. ओके, सो यहाँ पे भी क्या हुआ? इसीलिए ये Arrhenius theory फेल हुई एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन. ओके, थर्ड लिमिटेशन. व्हाट इज द थर्ड लिमिटेशन? ओके, थर्ड लिमिटेशन, Arrhenius suggests that the degree of dissociation increases with a dilution. Okay, degree of dissociation increases with a dilution, and hence the conductance increases with a dilution.
Hence conductance increases with the dilution. However, strong electrolyte undergo complete dissociation at all dilution. It means that कि according to the Arrhenius, जैसे जैसे डायल्यूशन करते हो, डायल्यूशन मीन्स वाटर की क्वांटिटी बढ़ा देते हो. ओके, सो जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी बढ़ते जाती है, डायल्यूशन होते जाता है, तो क्या होते जाता है बोल रहे हैं कि अंडरगो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होते जाता है ना, डायल्यूशन बढ़ते जाता है. बट फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट ऑल डाइल्यूशन, यानी पहले स्मॉल अमाउंट में वाटर लो, पहले से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट रहते थे, थोड़ा सा डाल दो डिग्री वाटर, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट ऑल डाइल्यूशन कंप्लीटली आयनाइज्ड. इट मीन्स दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाई एट ऑल डाइल्यूशन. ओके, सो देयरफॉर कंडक्टेंस शुड नॉट चेंज, होना नहीं चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू दी Arrhenius theory. However, it has been observed that the conductance of the strong electrolyte increases with the dilution. Okay, and therefore this is the most serious limitation of the Arrhenius theory. Okay, then fourth limitation, Ostwald dilution law based on the Arrhenius theory, and this only applied for the weak electrolyte, okay, or cannot explain for the strong electrolyte. This is also the limitation of the Arrhenius theory. Okay, so this is the fourth limitation. Then a fifth limitation. What is the fifth limitation? The value of degree of dissociation. The value of degree of dissociation of a strong electrolyte obtained from the equivalent conductance. Okay, value of degree of dissociation. Degree of dissociation of strong electrolyte obtain from किससे obtain किया गया, equivalent conductance से, है ना, is different from the value of degree of dissociation obtained of the strong electrolyte from the colligative properties, है ना. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो वैल्यू ऑब्टेन की गई है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की से निकाला गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से, है ना. तो वो वैल्यू क्या हो गई है, वो वैल्यू डिफरेंट, नॉट मैच. ओके, so this is the last limitation of the degree of dissociation. Okay, last limitation of the Arrhenius theory. तो ये जो 5 लिमिटेशन है Arrhenius theory के, और he cannot explain the conductance increases of the strong electrolyte. Okay, why conductance increases of the strong electrolyte? So for this, Debye-Hückel theory. अब ये थ्योरी आ गई, है ना. ये थ्योरी क्या कर रही है, ये थ्योरी अब एक्सप्लेन करेगी क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना. अरेनियस थ्योरी ने जो एक्सप्लेन किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है डिसोसिएट, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है डिग्री ऑफ अकॉर्डिंग टू दी डाइल्यूशन, है ना.
बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है, तो भी कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है ना? तो ही कैन नॉट एक्सप्लेन Arrhenius theory. So then apply the Debye-Hückel theory, and he explained the why conductance increases after the dilution. Okay. So strong electrolyte dissociate, strong electrolyte जो है डिसोसिएट 100%, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट अ मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन, है ना? मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में ही वो क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में ही वो कंप्लीटली डिसोसिएट, डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है उसको, है ना? तो भी उसकी कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है ना? सो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन हैज बीन suggested for this by Debye-Hückel theory on the basis of the two effects. First effect is the asymmetric effect and second effect is the electrophoretic effect. Okay, so today we will discuss about the asymmetric effect. Okay, so what is the asymmetric effect? Asymmetric effect, also it is called as the relaxation effect. Also it is called as the relaxation effect. Okay, relaxation effect. Here see, अब देखो in a solution, okay, ये solution है. In a solution, each positive ion surrounded by the sphere of the negative ion. It means that here see, surrounded by the negative, each positive ion surrounded by the negative ion. Okay, like this. Or each negative ion surrounded by the sphere of positive ion, okay. Like this, ठीक है. In the absence of electric field, the sphere is symmetric. In the absence of electric field, okay, suppose that absence of electric field, है ना? Absence of electric field, the sphere, ये जो sphere है वो क्या है? is a symmetric, and so net force of attraction, इसका जो net force of attraction है, जीरो. क्या रहेगा? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द आयन इज जीरो. नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयन इज जीरो इन द अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये समझने के लिए था. अब दूसरा ले लेते हैं, ठीक है? एक ही ले लेते, कौन सा भी, ठीक है. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, देन, अब ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, यानी इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है. ओके, तो ये क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सेंट्रल आयन मूव टुवर्ड द अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड. ओके, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड मीन सेंट्रल आयन क्या था? पॉजिटिव आयन था. ओके, तो ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव आयन ये मूव टुवर्ड द
opposite charge electron, it means that negative, or negative ion move toward the positive electrode. Okay, like this. Okay. So this is the asymmetric effect, and this is the symmetric effect, and this is the asymmetric effect, because change the atmosphere. During this process ionic atmosphere जो है break and new atmosphere generate. Old atmosphere break and new atmosphere generate. Okay, so there is a small time lag between the two atmosphere. The symmetric and asymmetric atmosphere में जो time lag रहता है between, है ना, दोनों के बीच का, वो सेकंड 10⁻11 सेकंड है ना, ऑर्डर ऑफ 10⁻11 सेकंड. Okay, between the collapse of the old atmosphere and formation of the new atmosphere. Okay, so during this period, अब ये जो बीच का जो time है, time lag, this period the ion is said to be relax हो जाती है ना, वो टाइम के लिए आयन क्या हो जाती है, रिलैक्स. एंड इफेक्ट, वही इफेक्ट को बोलता है रिलैक्सेशन इफेक्ट. उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन. मींस इसके जो ये एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट टू असिमेट्रिक एटमॉस्फेयर में जा रहा है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की रही है, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो जैसे ही इसमें से इधर कन्वर्ट हो रहा है तो वो टाइम, बीच में टाइम लगता है, वो टाइम लैग, वो टाइम के बीच में आयन क्या हो जाते हैं, रिलैक्स होते जाते हैं. वही इफेक्ट को बोलते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट. ओके, सो दिस ड्यूरिंग दिस रिलैक्सेशन पीरियड, वही पीरियड में क्या होता है, there is a retarding force, there is a net retarding force on the ion, net retarding force on the ion. क्यों? due to the more number of the opposite ion. ये जो अपोजिट आयन है ये पॉजिटिव, ये रिटार्डिंग फोर्स यानी रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द आयन. जैसे कि ये पॉजिटिव आयन है, ये यहाँ पे जा रहा है, मोशन माइग्रेट हो रहा है इधर. ओके, यहाँ माइग्रेट हो रहा है, लेकिन इसके बैक में जो है अपोजिट आयन वो क्या कर रहे हैं, नेट रिटार्ड फोर्स डेवलप कर रहे हैं, है ना, और वो अपोज कर रहे हैं इसके माइग्रेन के लिए, है ना, रिटार्ड दी फोर्स. ओके, और उसके कारण अपोजिट आयन ऑन अ बैक साइड, और एज अ रिजल्ट द स्पीड, और इसके कारण ये जो स्पीड सामने जानी चाहिए तो स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए. तो ये आयन बैक जो रिटार्डिंग फोर्स है वो क्या कर रहे हैं, इसके स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं. किसके, ये आयन के स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं. ओके, एंड सो कंडक्टिविटी, और इसके कारण कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ना कि डाइल्यूशन के कारण. ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है ना, तो ये जो अपोजिट फोर्स डेवलप द नेट रिटार्डिंग फोर्स टू द सेंटर आयन एंड देयरफॉर डिक्रीज द स्पीड ऑफ द आयन. ओके, एंड देयरफॉर डिक्रीज द कंडक्टिविटी. बट व्हाई, फिर डाइल्यूशन होने के बाद क्यों कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो क्या हो जाता है कि ये डिस्टेंस है, ये आयन का जो डिस्टेंस है, जैसे कि डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा दियो, तो ये जो पहले आयन यहाँ पे थे, ओके, डिस्टेंस ज्यादा नहीं, जैसे डाइल्यूशन करते हो तो डिस्टेंस बिटवीन द आयन इंक्रीज होता है, डिस्टेंस बिटवीन द आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, इंक्रीज होते जाएगा, और देयरफॉर नेट जो रिटार्डिंग फोर्स है, नेट रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज. नेट रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगा, decrease, because interionic distance decreases and therefore conductivity increases on a dilution. So this effect is called as the asymmetric
effect. When this solution is diluted, the interionic distance increases and pooling effect, जो pooling effect जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन इफेक्ट और असिमेट्रिक इफेक्ट. ओके, तो क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है ना, ऑन अ डाइल्यूशन. जैसे अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory, he explained that on a dilution increase the conductivity because increase the degree of dissociation, but for the strong electrolyte already 100% degree of dissociation at a moderate concentration. Okay, so how to increase the conductivity? So by the explained by the Debye-Hückel theory. Okay, and Debye-Hückel theory use the two effect, relaxation effect और उसी को बोलते हैं asymmetric effect, and second है electrophoretic effect. Okay, so second next class में हम पढ़ेंगे what is the electrophoretic effect. Thank you.